This conference will now be recorded. Prutik, small scale वाला टेंडर वाला सर मैं बोली थी कि वो आप आने वाले थे ना सकते हैं Yes, sir. Good morning, and we are about to start the session for displaying and demonstrating what are the new ways, new development, the new features that have been added in the Surya Gujarat portal for the ease of the consumers and the installers, as well as the DISCOM officers, and further automating the process. So in today's session, we will be covering three things. First, two new ways of registering the application. Till last year, there was one way that was through the EPC company. This year, two more options has been added, one from the DISCOM side, one from the consumer side. Second thing that we will be covering today is the PDI, the pre-dispatch inspection of the PV modules. So the online process for raising the request and getting it approved, and how it will work for EPC companies and for the DISCOM officers and the inspectors. So this will be taken in the second part. And the third part will be the demand aggregation platform that is also integrated with our Surya Gujarat portal, where whatever the lead that is being generated through the online platform, it will be displayed in your accounts after a post login. So all the installers will get the access of that lead, and whosoever wants, they can contact the EPC the consumers. वो directly उनको वहां से उनका contact details आ जाएगा, and they can contact them and help them in the solar installation. So that's how whatever the awareness state nodal agencies and the DISCOMs are doing, उससे कुछ भी अगर lead create हो रही है तो वो सारे installers को दिखेंगी. Third thing, we frequently receive request for cancellation. So once again, I will clarify the process for the cancellation, even to the DISCOMs and EPC companies, that they don't have to email to support email ID, because that is not the process. And once again, we will also once the app what will happen once the applications are deleted. So these are the points that we will be covering in today's session. So let's start with the process of registration. So till now, in all the EPCs, we're getting an option of registering the application, but now two more things has been added, one on the consumer side, one on the DISCOM side. So first we'll show on the DISCOM side how an application can be created from the DISCOM side, as the nodal officers from DISCOMs are also available in this meeting. So
डिस्कॉम के साइड पे भी ये अभी आपको एक न्यू एप्लीकेशन का फॉर्म आता है. सो ऑल नोडल ऑफिसर्स हु आर हियर फॉर देम. सो द मोमेंट यू क्लिक ऑन न्यू एप्लीकेशन और पीवी एनहांसमेंट, ये आपको फॉर्म पहला दिखेगा जिसमें if some consumers comes to the window discom office subdivision office और उनको जिस भी इंस्टॉलर से करवाना है उनका सारे का ड्रॉप डाउन में यहाँ पे लिस्ट है, वो उनको सेलेक्ट करके आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और उसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा. तो प्रोजेक्ट का डिटेल्स दैट लॉन्ग और ये सारी इंफॉर्मेशंस डाल के देन जो नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें कंज्यूमर का नाम कंज्यूमर नंबर डाल के डिटेल्स फेच होंगे, बाकी उनके आईडी अपलोड होंगे एंड देन यू हैव टू सबमिट. जब ये सबमिट होगा, ये इंस्टॉलर के साइड पे यहाँ पे पेंडिंग एप्लीकेशंस ऑप्शन दिख रहा होगा. अप्लाई के अंदर में 3 ऑप्शन है. पेंडिंग एप्लीकेशन, यहाँ पे ये ऐसे एक नोटिस आ जाएगा उस कंसर्न करेक्ट इंस्टॉलर को जिसका आप फर्स्ट पेज में यहाँ पे जिसको भी सेलेक्ट किया है. There is no any screen. Please share your screen. Okay. One second. Sorry, sir. Can you see the screen now? Yes, sir. Now it's visible. Okay. Yes, sir. So I'll repeat again. So अभी जो हम बता रहे थे कि इसमें 2 टाइप से आपका एप्लीकेशन हो सकता है, डिस्कॉम्स एंड इंस्टॉलर्स जो है वो ऑलरेडी आप अभी तक आप लोग करते हैं, तो यू आर वेल अवेयर कि वो कैसे करना है. सो फॉर द डिस्कॉम वैसे ही अप्लाई का ऑप्शन उनके लॉगिन्स में भी है सब डिविजन्स में. फर्स्ट पेज पे जिस ईपीसी कंपनी के साथ कंज्यूमर को सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है वो यहाँ पे से डिस्कॉम से सेलेक्ट करेंगे. देन प्रोजेक्ट के डिटेल्स जो कंज्यूमर उनको प्रोवाइड करेगा, लैट लॉन्ग और एप्लीकेशन की डिटेल्स, ये सारी चीजें भर के द मोमेंट दे सबमिट इट, तो जिसका भी सो लेट्स कंसिडर कि 360 एनर्जी का यहाँ पे सबसे पहले उनको सेलेक्ट कंज्यूमर ने किया है. So this requires consumer to the discom officer. So it will come in the login of installer. So apply के अंदर में जाएंगे तो पहला न्यू एप्लीकेशन जो आप लोग करते ही हैं, अभी पीवी एनहांसमेंट करते हैं, यहाँ पे पेंडिंग है. सो ये पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा डिटेल आएगा जहां पे कंज्यूमर का नाम, क्या कैपेसिटी है, कंज्यूमर नंबर क्या है, किस डिस्कॉम में पड़ता है और क्या उसका मोबाइल नंबर है. इफ द इंस्टॉलर इज रेडी टू इंस्टॉल्ड और इट्स फाइन विद द लोकेशन जहां पे उनके लिए रिक्वेस्ट आई है, दे कैन एक्सेप्ट. द मोमेंट आप एक्सेप्ट करेंगे ये यहाँ से पेंडिंग से मूव होके आपके माई एप्लीकेशन में चला जाएगा और फिर वहां पे जो आप नॉर्मल प्रोसेस करते हैं ऑफ ओटीपी वेरिफिकेशन एंड साइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तो सिमिलरली जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन वाला स्टेप नहीं होगा, आपको बस साइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है. इन केस की इफ यू आर जनरेटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम योर ओन आईडी, तब भी ये माई एप्लीकेशन में जाता है, वहां पे आप ओटीपी वेरीफाई करते हैं, देन यू सबमिट द साइंड एप्लीकेशन फॉर्म, देन ओनली आपका फर्स्ट वाला स्टेज येलो होता है. In this case, if the request is generated from the consumer side through the discom or through the mobile app by selecting the installer, तो वो installer के login में pending application में दिखेगा जहाँ पे they have to accept and it will move to my application. My application में move करेगा, वहां पे आपको application form generate हो जाएगा, जो normal आपका process है उस पे कंज्यूमर के साइन करके वो वापस अपलोड करेंगे. इट विल इन केस आप रिजेक्ट करते हैं तो इट विल गो इन आर्काइव्ड एप्लीकेशन. लेट्स से कि आपको इस एरिया में यू आर नॉट एबल टू वर्क, सो यू कैन रिजेक्ट एज वेल.
सो उस केस में क्या होगा कि आपको यहाँ पे आर्काइव में चला जाएगा। अब ये एप्लीकेशन जो है ये डिस्कॉम के साइट से कंज्यूमर क्रिएट करवा सकता है या आज सोलर के ऐप पे सूर्य गुजरात मॉड्यूल में जाके वहां से डायरेक्टली कंज्यूमर इंस्टॉलर को सेलेक्ट करके ये रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। So this is for the first part that we discussed, that what are the new features to apply on the Surya Gujarat portal, and how the consumers can also have more option of applying and not only being dependent on the EPC companies, they can also go to the Discom window or through the mobile app. So this was the first part. Now moving to the second part, jahan pe it is the PV inspection call is being raised. It has been assigned to inspectors and inspector is approving it, और फिर वो lot जो approve होता है उसको आपको installation करना है. So this is the entire process that will be covering here. The first step in this, so हम लोग एक बार पहले मैनुअल में देख लेंगे, उसके बाद फिर लाइव में देखेंगे. So सबसे पहले आपको क्या करना है कि procedure to raise the inspection call, log in from the installer login provided on the Surya Gujarat portal, click on PV inspection. So the moment this module is made live after this training sessions, so आपके ऊपर उसमें tabs में एक नया आएगा PV inspection. To raise a call आपको यहाँ पे क्लिक करना है. So आपका एक दूसरा विंडो ओपन होगा जहां पे ऊपर सर्च बटन है और एक बटन है रेज इंस्पेक्शन कॉल. इस इंस्पेक्शन कॉल पे आप क्लिक करेंगे तो एक फर्दर पेज ओपन होगा जहां पे आपको डिटेल्स लिख रही है, दैट द मैन्युफैक्चरर नेम, एड्रेस, टाइप, ऑफर, डेट ऑफ इंस्पेक्शन, OEM contact person, who will be the contact person at the OEM facility, what will be his mobile number, कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ द इंस्टॉलर, जो भी आपके साइट से जाने वाला है इंस्टॉलर के साइट से, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन नेम एंड उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंड द ईमेल आईडी. सो यहाँ पे आप इंस्पेक्शन रेज करेंगे और ये क्या ना फॉर्मेट फॉर CSV फाइल फॉर्मेट विल बी अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म पोर्टल, जो डिस्कॉम ऑफिसर को प्रोवाइड करना है. इंस्पेक्टर जो भी जा रहे हैं उनको EPC कंपनीज को प्रोवाइड करना है थ्रू द मैन्युफैक्चरर, जहां पे सीरियल नंबर, मॉडल नंबर एंड वॉटेज, ये डिटेल्स उस CSV फाइल में होनी चाहिए. एंड प्लीज मेक श्योर दिस इज अ CSV फाइल, नॉट द एक्सेल. सो जो भी मैन्युफैक्चरर है उनसे आपको ये सीरियल नंबर, मॉडल नंबर एंड वॉटेज का डेटा जो है ये CSV फाइल में लेके इंस्पेक्टर्स को प्रोवाइड करना है. व्हेन दे विल अपलोड दिस, तो उसकी क्वांटिटी यहाँ पे जो आपने क्वांटिटी मेंशन की है उससे मैच होनी चाहिए. सो विल गो हियर, आपको यहाँ पे जैसे ये रेज इंस्पेक्शन आया, हमने इस पे क्लिक किया, उनका जो भी मैन्युफैक्चरर है उनके एड्रेस, किस टाइप का मॉड्यूल है, पॉली है, मोनो है, थिन फिल्म है, ऑफर डेट का जो आपको विंडो है इट्स D+15 डेज के अंदर में ही आप कर सकते हैं, ना उससे पहले ना उसके बाद. सो लेट्स कंसिडर वी ऑफर द डेट ऑफ इंस्पेक्शन ऑन 12th. कॉन्टैक्ट नंबर, कितनी क्वांटिटी है,
10 यूनिट है, वॉटेज क्या है 330। डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं, सिस्टम मत खोलना खोलना। प्रिंट आप ही दियो सर। तो ये आपको जितनी भी क्वांटिटी ऑफर कर रहे हैं उसका क्वांटिटी यहाँ पे लिखना है, वॉटेज लिखना है और इंस्पेक्शन कॉल रेज करना है। This manual will be uploaded on the online platform. पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा ये मैनुअल से, डोंट वरी। सो यहाँ पे आपका रिक्वेस्ट रेज हो चुका है। सो इफ यू सी, आज हमने किया है, अभी सबमिटेड है। इन केस कि यू हैव रेज द कॉल बट इट हैज नॉट बीन असाइन्ड बाय नोडल ऑफिसर टू द इंस्पेक्टर, उस बीच में अगर आपको कैंसिल करना है या डिस्कॉम ऑफिसर को कैंसिल करना है तो दे कैन कैंसिल इट। यहां पे जाके क्लिक करेंगे, कैंसिल रिक्वेस्ट हो जाएगा। सो इस शीट, इस टेबल में आप देखेंगे सबसे पहले रिक्वेस्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट पर्सन ऑफ द इंस्टॉलर है, किस मैन्युफैक्चरर के लिए है, ऑफर डेट क्या है, इंस्पेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वॉटेज क्या था, क्वांटिटी क्या है। सो टोटल 3.3 किलोवाट है, क्रिएटेड, स्टेटस क्या है, सबमिटेड, इट इज। सो यहाँ पे 4 स्टेटस है, 5 स्टेटस है। पहला सबमिटेड, देन इंस्टॉलर विल रेज द रिक्वेस्ट, वो स्टेटस होगा आपका सबमिटेड का। फॉरवर्ड कर देना सेकंड स्टेटस है आपका नोडल ऑफिसर असाइंस टू द इंस्पेक्टर, दैट इज कॉल्ड असाइन। इन केस कैंसिल हुआ है यहाँ से इंस्टॉलर साइड से, या प्लीज म्यूट योर माइक एवरीवन, रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योर माइक। इन केस की नहीं, उसमें मेरा डीपी लगा है, वो मेरा प्राइवेट है। फिर मैं तूने वो देखा तो होगा ना क्या? So cancelled is when EPC or the DISCOM nodal officer cancels before assigning. Inspected जब मॉड्यूल इंस्पेक्शन हो गया है। सर प्लीज राइट डाउन, फोकस ऑन व्हाट वी आर टेलिंग। आपको सारी चीजें मैनुअल और ये सब प्रोवाइड कर दी जाएंगी सर। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, यू आर यूजिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो संकेत जी डोंट वरी कि रिकॉर्डिंग मिलेगी, ये करेगी। अभी जो एक बार चल रहा है सर वो देख लेंगे। मैनुअल्स एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, इट इज वेरी सिंपल। अगर आप लोग सर जो भी यूज किए हैं अभी तक पोर्टल उसी फ्लो में है, तो कोई ज्यादा उसमें हमने फेरबदल नहीं किया है। एक बार देख लेते हैं सर। इंस्पेक्टेड, इफ इंस्पेक्टर इज इंस्पेक्टेड द मॉड्यूल, तो यहाँ पे आपका स्टेटस इंस्पेक्टेड आ जाएगा। रिजेक्टेड अगर इंस्पेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया है। सो ये काम करने के बाद अभी इंस्टॉलर साइड से द टास्क इज ओवर। नाउ ये आपका डिस्कॉम के साइड का अब इसके बाद डिस्कॉम के साइड का काम स्टार्ट होगा, बिकॉज द रिक्वेस्ट हैज बीन रेज्ड from the installer side. Now the DISCOM nodal officer will again log in. उनको भी यहाँ पे पीवी इंस्पेक्शन का बटन दिखेगा। सो जो भी कॉल रिक्वेस्ट रेज होंगी वो डिस्कॉम के नोडल ऑफिसर्स को जाएंगी, दैट इज इन द कॉर्पोरेट ऑफिस। उनको जो भी रिक्वेस्ट अनअसाइंड है
उसमें यहाँ पे चेकलिस्ट चेक बॉक्स दिखेगा, दे हैव टू click on the assign button. So the moment you click on this, if all the calls has to be assigned in a single go, just you need to click at the top. If एक एक करके करना है तो यहाँ पे एक एक करके क्लिक करिए, assign पे क्लिक करें, assign inspector पे क्लिक करेंगे. So all the inspectors who are available for this job, the list has been provided from the GUnl side and उनके details यहाँ पे mapped है, तो उनकी list आ जाएगी. So this is the list of inspector, और whichever inspector has to be assigned for this, उनको यहाँ पे click कर देना है. So they will get a notification that this has been assigned to them, and उनको SMS भी चला जाएगा, और they can also check it on the online platform कि उनको कितना assign हुआ है. Now inspector has to log in. इंस्पेक्टर जो होंगे उनको भी यहाँ पे पीवी इंस्पेक्शन का बटन होगा, उनको क्लिक करना होगा. जिसका भी वो इंस्पेक्शन करने गए हैं वो रिक्वेस्ट नंबर के यहाँ पे दे कैन सी देयर इज अ बटन फॉर अपलोडिंग अ डॉक्यूमेंट. ये वो डॉक्यूमेंट है जो CSV फाइल मैंने पहले बताई थी कि एक CSV फाइल जिस CSV फाइल में सीरियल नंबर, मॉड्यूल नंबर, वॉटेज पीक, ये तीन डेटा आपको प्रोवाइड कराना है इंस्पेक्टर को. सो फॉर दिस केस, फॉर दिस एग्जांपल जो हमने पहले लिया था कि 10 मॉड्यूल 330 वॉट के हैं, तो यहाँ पे आपके सीरियल नंबर 10 के अलग होने चाहिए, मॉडल नंबर विल बी सेम, वॉटेज 330 के होंगे, 330 के 10 होंगे और सीरियल नंबर यूनिक होगा, तभी ये फाइल अपलोड होगी. इन केस कि 2 सीरियल नंबर मैच हो रहा है या फिर इन द एंटायर सिस्टम, लेट्स से कि इंस्टॉलर ए ने ये सीरियल नंबर यूज किया है वारी का, और इंस्टॉलर बी भी ये सीरियल नंबर यूज कर रहा है, ये मॉडल यूज कर रहा है, ये वॉटपिक यूज कर रहा है वारी का, तो द सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट दिस फाइल. So it will be a unique number जो इंस्टॉलर को मैन्युफैक्चरर से मिलेगी. सो स्क्रीन हम अभी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? Yes sir, yes sir. Yes, sir. ओके, फाइन सर, फाइन सर. Yes sir. So दूसरी चीज यहाँ पे लेट्स से कि आपको एक कॉल में 330 के 10 मॉड्यूल हैं और 300 के 20 मॉड्यूल हैं, तो उसके लिए आपको 2 कॉल रेज करना होगा. सो इन अ सिंगल कॉल आपका एक ही वॉटेज का कॉल होगा, भले ही आप एक साथ कर रहे हैं, एक ही दिन पे करना है, तो वो अलग अलग कॉल रिक्वेस्ट नंबर जनरेट करना होगा. बट इन अ सिंगल फाइल आप सिंगल कॉल आपका वॉटेज एक ही रहेगा. सो इट माइट हैपन कि अगर आप अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर का एरर आ गया, सीरियल नंबर का एरर आ रहा है कि ये नंबर यूज हुआ है, तो उसका 2 ही रीजन हो सकता है, आइदर आपने ही वो यूज किया है या मैन्युफैक्चरर ने ये सीरियल नंबर किसी और इंस्टॉलर को भी दिया हुआ है. सो जहां से भी आप मॉड्यूल्स लेंगे उनसे आपको मैन्युफैक्चरर से सीरियल नंबर मिलता है. So ask them to provide in this format only, and it has to be in CSV file, not in the Excel file. ये CSV फाइल आप जब जो भी इंस्पेक्टर्स आएंगे उनको प्रोवाइड करना है. इंस्पेक्टर ये ब्लू बटन जो एक्शन में दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे तो एक अपलोड पीवी इंस्पेक्शन CSV फाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओपन करेंगे, अपलोड करेंगे. अपलोड करने के बाद इसी एक्शन बटन पे 2 चीज दिखेगा, अप्रूव के लिए एक टिक आएगा और रिजेक्ट करना है तो क्रॉस आएगा. इन केस की द इंस्पेक्टर इज सैटिस्फाइड विद द इंस्पेक्शन एंड ही वांट्स टू अप्रूव, तो उनको ये राइट पे क्लिक करना है और एक्स या क्रॉस कर देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा. अभी हम लोग थर्ड स्टेज क्लियर कर लिए हैं, जहां पे इंस्टॉलर ने रिक्वेस्ट रेज की है, नोडल ऑफिसर ने
आगे इंस्पेक्शन के लिए असाइन किया है, इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्ट कर लिया है। नाउ द फोर्थ स्टेज इज जो भी आपके सीरियल नंबर अपलोड हुए हैं वो आपके सूर्य गुजरात पोर्टल के साथ लिंक हो गए हैं। सो लेट्स से इंस्टॉलर ने 10 सीरियल नंबर 330 वॉट के इंस्पेक्शन के लिए डाले थे, तो ये सारे इंस्पेक्टेड मॉड्यूल आपके अकाउंट में सेव्ड रहेंगे। सो अब उस केस में क्या करना है, जब भी आप वर्क एग्जीक्यूशन 2 में, सो नाउ आपने लॉट अप्रूव करा लिया है, नाउ इट हैज टू बी मैप्ड विद द प्रोजेक्ट। ये सीरियल नंबर आप किस प्रोजेक्ट में डाले हैं। सो उस केस में आप क्या करिएगा, जहां पे भी आप प्रोजेक्ट करते हैं उसमें वर्क एग्जीक्यूशन 2 का विंडो आता है, उस वर्क एग्जीक्यूशन 2 पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद वहां पे आप देखते होंगे कि मॉड्यूल का एक डिटेल का सेक्शन है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू एंटर द कैपेसिटी। सो आपने 330 के मॉड्यूल इंस्पेक्ट कराए हुए थे और मैन्युफैक्चरर आपने एक सेलेक्ट किया था। तो जब आप ये दोनों डेटा डालेंगे तो आपको यहाँ पे एक एक्शन बटन दिखेगा। ये एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन आएगा जिसमें ये 330 वॉट के जितने भी मॉड्यूल इंस्पेक्टेड है एंड अनयूज्ड है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। You need to select, if you want to put 3 modules, just select those 3 number and submit. तो ये इंस्पेक्टेड मॉड्यूल आपके इस प्रोजेक्ट के साथ मैप्ड हो गए हैं। जो जो प्रोजेक्ट के साथ मैप्ड होते जाएंगे, जो जो इसके साथ मैप्ड होते जाएंगे वो आपके यहाँ ड्रॉप इस लिस्ट से रिमूव होते जाएंगे। सो दिस इज द फोर्थ स्टेप जहां पे इंस्टॉलर हैज टू map the inspected module with the project. So that can be done from the work execution to first select the capacity, make, then click on the action plus button. Action plus button पे click करेंगे, serial number drop down will open. यहाँ पे आप जो भी uninspected इस watt peak के और इस make के हैं वो you have to just select and submit. So that's how the PV inspection module will work. So now the third thing that we will be, sir, Equinox से आपका जो question है, now even the manufacturer has to follow this because until unless they don't do it, वो module inspection नहीं होंगे। आपका इंस्पेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा बिना सीरियल नंबर के। सो whosoever is the module manufacturer and they want to sell DCR modules for the subsidy scheme, they have to do it. So now coming to the third part, which is the demand aggregation platform which has been created for the consumers. So यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए एक कैलकुलेटर्स भी दिया हुआ है कि if they want to create the lead and they want to know and want to if proceed for installation, so you can come here, select the discom, कंज्यूमर नंबर डालेंगे, बेसिक डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद उनको यहाँ पे क्लिक ऑन नो अबाउट द रूफटॉप इंस्टॉलर, calculate saving. So they will get the calculator and they will get the estimated amount and the project cost. If they are willing to proceed further, they will click on OK, and based on that, it will get reflected in the logins of installer.
तो जितने इंस्टॉलर हैं इस प्रोसेस से जो भी लीड्स क्रिएट होंगी वो आपके लॉगिन में डिस्प्ले होंगी, इस टाइप से डिस्प्ले होंगी। इफ यू वांट टू प्रोसीड यू कैन कॉल देम, यहाँ पे उनका नंबर है। इफ यू डोंट वांट टू प्रोसीड यू कैन लीव इट। बट जिसको भी यहाँ पे दिस इज ओपन फॉर ऑल, एज consumer has already provided the consent that an EPC company can contact them। तो ये सारे EPCs को डिस्प्ले होगी जो जिनके रीजन्स में होंगे, ये वहां पे उनको दिख जाएंगे। All these leads are provided to the EPC companies as a part of the awareness program that GUVNL and the other DISCOMs are doing for the scheme, and it is above the over and above the activities that the EPC companies do, जहाँ पे वो अपने sources से leads create करते हैं। This is from the DISCOM sites, अगर if anyone wants installation, so this lead will be created and it will be displayed on the installer login. For the consumers, there is इसके बाद एक और चीज नई ऐड की गई है regarding the track application। at times आपके जितने भी installers हैं वो अब जब भी installation करते हैं, please do educate your consumers that they can track their application by going to the Surya Gujarat portal, click on track application, enter these details and search, because at times the emails are received that they are not aware how to do it. So as a part of your process you should always communicate and educate your consumers that if they want to track the status, they can just go here and enter the application details to see the details of their status। and इसमें एक चीज जो और है वो ये है कि अब जो भी आपके पेमेंट्स कंज्यूमर ने किए हैं उसका पेमेंट रिसिप्ट विद इन 2 days of the receipt of the payment has to be provided to the consumer, and it has to be uploaded on the Surya Gujarat portal against the application। This activity can be done by both EPC company, and there is also an option provided to the consumers जो ट्रैक एप्लीकेशन में जाके कर सकते हैं या सोलर के ऐप में सूर्य गुजरात मॉड्यूल में जाके वहां से भी अपलोड कर सकते हैं। बट एज एन इंस्टॉलर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन एक्शन में क्लिक करेंगे, अपलोड पेमेंट रिसिप्ट, सो पेमेंट अमाउंट, रिसिप्ट, टाइटल, अपलोड फाइल। इट इज अ मल्टीपल टाइम, सो जितनी बार भी आप इसको अगर आप लेट्स से एक बार में पेमेंट ले रहे हैं तो एक बार में डालिए, 4 बार में ले रहे हैं 4 बार में डालिए, व्हाटएवर में बी योर पेमेंट साइकिल, 6 बार में ले रहे हैं तो 6 बार में। बट for every payment that has been received from the client, the receipt has to be generated within 2 days and it has to be uploaded on the portal। So this is as per the EOI of this year, and each installer will get an option in their respective logins against the application action। हर एक एप्लीकेशन में सबसे नीचे आपको अपलोड, ये है जो भी आपने अपलोड किया है वो आप अगर नाम पे क्लिक करेंगे, when you click on the name, यहाँ पे जो अपलोड्स होती हैं, सो देखिए पेमेंट रिसिप्ट आ गया, 1 2 जितनी भी आपने अपलोड की है सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ व्हाटएवर, सो इट इज नॉट अ वन टाइम अपलोड कि आप एक बार जितनी बार आप अपलोड करिएगा वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव होते जाएंगे। इट कैन नॉट बी डिलीटेड। इन केस कि आपने मिस्टेक किया है आप वापस से अपलोड कर लीजिए, बट ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी केप्ट इन द सिस्टम once whatever you have uploaded। So one thing needs to be ensured that before within 2 days of the receipt of the payment, this receipt has to be uploaded on the portal। So ये 4 चीजें हैं which we wanted to as a team wanted to inform to all the EPC companies and the DISCOM officers
एक जो रेगुलर आता है कि हाउ टू डिलीट द एप्लीकेशन. सो डिलीट एप्लीकेशन के लिए द प्रोसीजर दैट हैज बीन सेट एज ऑन डेट इज a consent letter from the consumer and EPC company has to be submitted in the corporate office only. वहीं से ये डिलीट होते और कोई सब डिविजन से एज ऑन कहीं से भी ये डिलीट नहीं होता है. सो कुछ भी एप्लीकेशन अगर डिलीट हो रहा है तो इट इज टू बी डन थ्रू द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ ईच डिस्कॉम. So that's it from our end. If anyone has any question, so you may ask. सर मेरा क्वेश्चन है कि जी सर, अभी बताइए. तक जो हम और सेल्फ सर्टिफिकेट अटैच करते थे ना तो इंस्पेक्शन सेल्फ सर्टिफिकेट क्लियर हो जाता था, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है. क्या सर? हेलो सर बाकी लोग प्लीज माइक म्यूट. जी सर अभी मेरा क्वेश्चन ये है, अभी मैं वर्क एजुकेशन 1, 2 और सेल्फ सर्टिफिकेट जब अपलोड कर देता था ना ऑन पोर्टल पे, तभी मेरा 7 नंबर का स्टेप वो कंप्लीट हो जाता था ऑटोमेटिकली. इंस्पेक्शन सेल्फ सर्टिफिकेट वो वाला अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा है. सर, आपका वर्क एग्जीक्यूशन 2 में बाकी डिटेल्स नहीं भरी होंगी एंड इट इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन. क्योंकि अगर आपका स्पेसिफिक है तो यू प्लीज डिस्कस पोस्ट दिस सेशन, क्योंकि आपका उसमें वर्क एग्जीक्यूशन 2 में कुछ एंट्री नहीं की होगी या कोई आपके स्पेसिफिक केस में होगा. अदरवाइज देयर इज नथिंग हैज बीन चेंज्ड इन दैट. कुछ आपके Okay, आइदर डेट नहीं हुआ होगा या वर्क एग्जीक्यूशन 2 में स्टार्ट डेट नहीं आ रही होगी. समथिंग विल बी देयर सर. ओके सर, थैंक हेलो यू. सर, इट्स चेतन फ्रॉम इक्विनॉक्स. मेरा क्वेश्चन है था सर कि अगर मैन्युफैक्चरर कोई और है और मुझे इंस्पेक्शन कहीं और करवानी है दूसरे साइट पे, तो हमारे उसमें वो OEM एड्रेस में हम डालेंगे ऑप्शन, क्या कर सकते हैं? OEM एड्रेस पे आपका जितने भी आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका एड्रेस हमको डिस्कॉम से प्रोवाइड किया गया था. ठीक है. सो फॉर ईच मैन्युफैक्चरर द एड्रेसेस आर देयर. इन केस की उनका इंस्पेक्शन मल्टीपल जगह पे होता है. ठीक है. सो दैट OEM हैज टू प्रोवाइड द एड्रेसेस व्हिच नीड्स टू बी एडेड इन द डेटाबेस. सो वन टाइम प्रोसेस होगा आपका. उसके बाद से उस जगह का सो लेट्स से कि यहाँ पे अगर वो मुंद्रा मैन्युफैक्चरर नाम के साथ वो बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा ना? मैं वही कह रहा हूँ सर कि सर वो नाम के वन साथ टाइम प्रोसेस है. अभी जो डिस्कॉम्स के साइड से एड्रेस प्रोवाइड किया है मुंद्रा का एक ही है. लेट्स से कि मुंद्रा 3 जगह और करवा रहा है तो वी नीड Okay. टू ऐड एड्रेस. तो ये आपको ड्रॉप डाउन में वो सारे एड्रेस आ जाएंगे जिसमें भी आपको करना है कर सकते हैं. वो ड्रॉप डाउन में कौन ऐड कर सकता है सर? वो डिस्कॉम ही कर सकता तो है? वो तो सर बैकएंड से ही होगा. वो थ्रू द डिस्कॉम्स आप एक बार प्रोवाइड करवा दीजिएगा, हो जाएगा. नहीं सर, इसमें क्या है, मेरा क्वेश्चन है सर कि मेरा मैन्युफैक्चरर कोई और है. मान लीजिए मेरा मैन्युफैक्चरर विक्रम है और मेरा इंस्पेक्टर मुंद्रा सोलर है. मुझे इंस्पेक्शन मुंद्रा सोलर में करवाना है, क्योंकि हमारा अभी ऐसा ही चल रहा है सर कि हम लोग वहाँ कलकत्ता नहीं करवा रहे सर, यहाँ गुजरात में करवा रहे इंस्पेक्टर. सर तो उस केस में आपको मुंद्रा का जो भी मुंद्रा सोलर का प्लांट है यहाँ पे उनका इंस्पेक्शन होता है. सो ये आप एड्रेस प्रोवाइड कर दीजिए कि हमको ये मैन्युफैक्चरर का इस जगह पे ये एड्रेस है. सी द सिस्टम डजंट नो कि वो मुंद्रा सोलर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या इसका है. आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का नाम दिया मुंद्रा सोलर, उसके 10 एड्रेसेस हो सकते हैं. हमारे पास एज ऑन डेट एक एड्रेस है. अगर आप प्रोवाइड करते हैं डिस्कॉम्स को कि नहीं ये 4 एड्रेस पे और मुंद्रा ये विक्रम सोलर अपना इंस्पेक्शन करवाता है, तो प्रोवाइड दैट एड्रेस विल मैप टू दैट ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरर. ओके, तो वो डिस्कॉम को ही हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ना कि वो आपको आप प्रोवाइड करवाए. वन टाइम वो डिटेल सर आप नोडल ऑफिसर्स को दे दीजिए. सो ऑल द इंस्टॉलर्स आर हियर. आप लोग को अगर लगता है कि कोई ऐसा मल्टीपल एड्रेसेस है, अभी तो क्या है कि जो भी कंपनीज का एड्रेस है उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हमारे पास एड्रेस था वही. इन केस कि आपको लगता है कि हाँ और भी है तो आप सारे अपने नोडल ऑफिसर्स को दे दीजिए. विल कलेक्ट इट फ्रॉम देम एंड विल ऐड इट बिफोर नेक्स्ट. और इन केस की अगर फ्यूचर भी अगर आता है तो आप नोडल ऑफिसर्स को दे दीजिएगा. विल कलेक्ट इट फ्रॉम देम एंड इट विल बी एडेड.
So I hope चेतन जी मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दिया. यस सर, यस, थैंक यू। ओके पुनीत सर, जी सर. अभी ये हमने लास्ट ईयर जो मॉड्यूल इंस्पेक्शन ऑलरेडी करवा के रखे हैं और अभी ये साल अभी डाल रहे हैं ये मॉड्यूल्स, तो अभी उसका फिर कैसे रहेगा हमारा, क्योंकि वो मॉड्यूल तो इसके अंदर कभी आने वाले नहीं है ना लिस्ट में। सर इस साल के स्कीम स्टार्ट होने के बाद जितने भी मॉड्यूल्स आपने इंस्पेक्ट कराए हैं उसका डेटा हम लोग को डिस्कॉम से मिल जाएगा. दैट विल बी एडेड इन योर अकाउंट. और लास्ट ईयर वाले भी हो जाएंगे, 1920 वाले भी. सो वो सर आई थिंक सर एक सेकंड सर, आई जस्ट सर वो आपको आई थिंक एक बार आप डिस्कॉम से प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा. आई मे नॉट बी एबल टू आंसर दैट कि 1920 वाले होंगे कि नहीं. 20 इस साल के स्कीम के तो ऑलरेडी डिस्कॉम विल बी प्रोवाइडिंग दैट डेटा, तो वो अपडेट हो जाएंगे. पिछले साल के हैं कि नहीं वो डिस्कॉम नोडल ऑफिसर से आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा. ओके सर, ओके, थैंक यू. If they don't know, they will get it clarified from GNL Solar sir. ओके. Sir, any other thing, sir? Sir, I am Deepak Khagar from Heaven Solar. जी सर बताइए सर. सर अभी मैं देख रहा हूँ तो मेरा वर्क एजुकेशन 1 में स्टार्ट डेट ऑटोमेटिकली आ रही है और एंड डेट का कोई मेरे को मैन्युअली ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है डालने के लिए. एंड डेट आपके मैनुअली आता भी नहीं है. एंड डेट विल कम व्हेन द इंस्पेक्शन इज अप्रूव्ड, इंटीमेशन इज अप्रूव्ड फ्रॉम द डिस्कॉम सब डिवीजन ऑफिसर. ओके सर, पर लेकिन अभी मेरे को इंटीमेशन का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है मेरे को. मैंने सेल्फ सर्टिफिकेट भी अटैच कर दिया, वर्क एजुकेशन 1 2 कंप्लीट कर दिया है. मैं आपको वापस बोल रहा हूँ सर, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग, सो प्लीज कैन टॉक आफ्टर दिस कॉल सर, बिकॉज़ दिस ओके 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 10 मिनट का टाइम है एंड देयर आर 4-5 न्यू मॉड्यूल्स दैट वी नीड टू डिस्कस. किसी को वो उसके रिलेटेड इशू है तो वी कैन टेक दैट क्वेश्चंस. आप इस कॉल के बाद मेरे से बात कर लीजिएगा. लेट यू नो क्या है. हेलो जी सर, जी सर. अभी सपोज आज से पहले जो भी इंस्पेक्शन के कॉल डाले हैं तो वो कॉल जो है वो फिर से हमें डालने पड़ेंगे या फिर आज के बाद के जो भी कॉल है वही? सर जब से ये मॉड्यूल लाइव होगा उसके बाद के कॉल आपको डालने पड़ेंगे, उसके पहले के कॉल की आपको जरूरत नहीं है. उसके पहले के जो इन केस की कोई ट्रांजिशन में होगा या अभी असाइन नहीं हुआ है वो में भी आपको डालना पड़ जाए, लेकिन जो एक बार हो चुका है उसको आपको डालने की जरूरत नहीं है. ओके, थैंक यू. और सर ये सारे चीजों के मैनुअल्स जो है सर अपलोड हो जाएंगे द मोमेंट इट इज मेड लाइव. ये सारी चीजों के मैनुअल हो जाएंगे अपलोड. यहाँ पे दो जगह पे आप यू कैन सी दिस मैनुअल. क्लिक हियर फॉर द स्टोरी पोर्टल मैनुअल. यहाँ पे क्लिक करेंगे पोर्टल मैनुअल एंड गाइडलाइन. सर हर एक चीज है ना इसमें डाली हुई है. जो भी नए मॉड्यूल्स भी आएंगे वो भी यहाँ पे डाला हुआ है. तो इनकेस की कोई इश्यू है तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं. और स्टिल कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क और एल्स विल. हेलो जी सर. कार्तिक बात कर रहा हूँ जोड़िया एनर्जी लिमिटेड से. जी सर. सर जी ये जो पेमेंट का आप बोल रहे हो, पेमेंट का रिसीव अपलोड करना है तो उसका कोई फॉर्मेट वगैरह है या ऐसे ही कोई हम लोग जो पेमेंट आया वही डाल दे उसमें? सर पेमेंट का आपका रिसिप्ट आप जनरेट करते होंगे ना, अपना जो भी पेमेंट लिए हैं उसका देयर हैज टू बी सम फॉर्मेट कि अगर आपके यहाँ कोई पेमेंट अगर आपको करता है तो उसका आपको रिसिप्ट एक नॉर्मल रिसिप्ट पेमेंट रिसिप्ट देते हैं. सो दैट हैज टू बी अपलोडेड. GNL or Surya has not specified any format. So यहाँ पे से सर आप you can download all the guidelines and manual. इसका लिंक यहाँ पे भी दिया हुआ है. ठीक है. सर अगर कोई और क्वेश्चंस है तो we'll take it, otherwise we will end the session. और मोस्टली ये
PDI वाला टूल either tomorrow or Monday it will be made live. ठीक है, अगर इन केस सर नई चीज जा रही है, अगर कोई भी इससे रिलेटेड इश्यूज हो, so you can ask and we will also reach once it is made live, so that कि अगर उसको smoothen out करने के लिए अगर back and forth भी कुछ होगा तो we'll do it. More or less आपको उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, but still अगर कुछ होगा तो we'll be there. And we'll share the recording, we'll upload the recording some either on the YouTube or यहीं पे पोर्टल पे. We'll see. इसका recording and manuals दोनों डाल देंगे सर. Okay sir, I think there are no further questions, so thank you sir, and thank you all.